I'll take off mine. Just close your eyes, relax your shoulders, drop down all the worries, thoughts, everything that is going on in your mind. Drop down all the responsibilities, all the tensions for a while. We are the chosen souls. We have been chosen by the universe to attend a beautiful session of occult, a beautiful vertical of occult, that is Vedic numerology. And today we are going to understand and decode many more mysteries of the universe with the help of tool Vedic numerology. Keep your spine straight and your shoulders relaxed. We will take 3 deep breaths. I'll do the counting for everyone and we will take 3 deep breaths. So here we go with the first breath. Inhale, hold and count 5. Exhale. We all are feeling a bit relaxed. After a day's long work, we all are feeling a bit relaxed. In the same way, we will take 2 more deep breaths. So now the second breath. Second was with larger force than the first one, giving us more relaxation. Now with the third and the last breath, we all are feeling very, very relaxed. Our spine is straight, shoulders drop down, mind has calmed down. Now we will do chant of Om Namah Shivaya for 11 times. I'll chant for everyone. You all can relax at your own place and chant for yourself and for everyone. So here we go. Om Namah Shivaya. 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 We have chanted for 11 times. We are surrounded with very, very positive energy. We'll stay in this positive energy for few moments and then we'll rub our hands and place the energy
Hands full of energy on our eyes, and slowly we are going to open our eyes. So yes, a very warm welcome again to the session. We all are feeling relaxed and concentrated and focused towards the session. तो जिन लोगों ने भी अपने I'll be speaking in both the languages, Hindi and English. I believe it's okay for everyone. आप लोग मुझे chat में type करके बता सकते हो. किसी को कुछ भी अगर problem है, if any language barrier is there, you can just type in the chat box and let me know. Yes. तो हम सब यहाँ पे जुड़े हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी का ये सेशन करने के लिए. So before we start with the session, before we embark on this beautiful journey of Vedic numerology, we need to understand first of all what is numerology and how it can help us in our daily lives. Yes? Anyone wants to answer this question? I'll give the option of unmuting. We'll make it a very very interactive session. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप लोग सब खाली सुन रहे हो. बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी. You all are free to answer. But ऐसा नहीं कि मैं कुछ सेशन में कह रही हूँ तो आप बीच में ओवरलैप करके बोल रहे हो. So anyone wants to say anything about it? Why is numerology important for us in our life? आप लोग सब यहाँ जुड़े हो सेशन के लिए, तो कोई कारण से जुड़े. Yes, राधिका? Numbers play a very important role. हमारा यूनिवर्स, हमारी सब चीजें नंबर रिलेटेड है. इवन द प्लैनेट्स आर नंबर्स. Yes. तो इवन व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, हम वक्त देखते हैं, पैदा होने का वक्त, आपका वक्त, एवरीथिंग, जितने भी नोटिफिकेशंस है हर जगह, एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए, किसी भी साइंस में पढ़ा जाए, नंबर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे डिफाइन अस. Very true. Thank you so much, Radhika, for the beautiful inputs. Yes, friends, numerology is the science of numbers. It is the language of numbers. Numbers हमारे चारों तरफ है. The day we are born, the day the fetus take the first breath in a mother's womb, till the day we leave our soul for the next journey. We leave our body for the next journey. The soul leaves the body for the next journey. उस दिन तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी लाइफ नंबर्स से ही बनी हुई है. The first day when the soul takes the first breath under the sun, माँ के गर्भ से निकल के जब पहली बार बच्चा रोता है, वो एक पल होता है. हम वो टाइम नोट डाउन करते हैं, टाइम ऑफ बर्थ. वो एक दिन होता है, डेट ऑफ बर्थ. एंड डेट ऑफ बर्थ बिकम्स अवर कॉस्मिक डीएनए. जैसे हमारा डीएनए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, हमारे डीएनए से हम कुछ भी उस इंसान के बारे में जान सकते हैं. वो सबके लिए यूनिक होता है. वो कहीं भी उसके अंदर कोई भी दूसरा पर्सन का कुछ भी ओवरलैप नहीं होता है. बिल्कुल वो उसके लिए एक यूनिक होता है. उसी तरह से हमारा डेट ऑफ बर्थ इज आवर कॉस्मिक डीएनए. इट इज अ वेरी वेरी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. यस, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल हमारे लिए बहुत ज्यादा यूनिक होता है. उसके जैसा हमारे लाइफ में वैसा कोई डेटा दूसरा नहीं होता है. उसके बाद आता है वी ऑल ग्रो अप, वी गो टू स्कूल, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, वी हैव आवर आईडी कार्ड्स. वहां पे भी हमारे पास नंबर्स होते हैं. जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो एक सेरेमनी होती है सबके घरों में, वो होता है नामकरण संस्कार. इवन इफ भी सेरेमनी नहीं भी होती है तो भी बच्चे को एक नाम दिया जाता है.
अगर हम जन्म पत्री भी बनवाते हैं तो वहां भी ग्रह नक्षत्र के हिसाब से एक अल्फाबेट दिया जाता है एंड उसके हिसाब से बच्चे का नाम रखा जाता है। यस, तो हमारा जो नाम है उसमें जो भी अल्फाबेट्स है, ऑल दीज अल्फाबेट्स हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड वो न्यूमेरिक वैल्यू फिर हमारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आवर नेम नंबर अगेन बिकम्स अ डेटा विच इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। आप अपना नाम चाहे कितने भी लोगों के साथ में शेयर करते हो। अब रश्मि के नाम से आप बहुत लोगों को जानते होंगे। रश्मि के नाम से आप आपके डायरेक्टरी में बहुत सारे नाम सेव्ड होंगे। मैं अगर फोन करूंगी तो हो सकता है सामने वाला मुझे पूछे आप कौन सी रश्मि बोल रहे हो। एक कॉमन नाम इतना कॉमन होता है। बट जब भी कोई रश्मि बुलाएगा एक पार्टी एक गैदरिंग में, उस पार्टी में 4 रश्मि हो सकते हैं, मगर जब भी कोई रश्मि बुलाएगा तो हर रश्मि घूम के देखेगी, बिकॉज they have heard that name since from the time they knew hearing। जब से उन्होंने सुनना सीखा है तब से वो नाम अपने लिए सुन रहे हैं। तो भले ही वो नाम 4 और लोगों का हो लेकिन उनके लिए उनका अपना नाम इम्पोर्टेंट है। तो यस, योर नेम नंबर, योर न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ योर नेम इज ऑफ वेरी वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर यू। बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देन कम्स द थर्ड डेटा, दैट इज आवर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का तो क्या ही कहना, मोबाइल के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक हमारा मोबाइल, एक हमारे हाथ में हमारा मोबाइल है। हैंडसेट आपका कोई भी ब्रांड का हो सकता है। आपने जो उसमें कनेक्शन लिया, जो आपने सिम लिया है, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिया टू जियो या उसके अलावा भी कुछ और। यस, मगर वो सिम चलता कैसे है? वो सिम फिर से चलता है 10 नंबर्स से। इन इंडिया, लिविंग द कंट्री कोड अपार्ट, 10 नंबर्स के ऊपर वो सिम चलता है। यस, तो अगेन नंबर्स प्ले प्राइम इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। भले ही वो वेरिएबल डेटा है आपका, भले ही वो डेटा आपके लिए वेरिएबल, अब आप कहेंगे मोबाइल नंबर तो हम चेंज कर सकते हैं, डेटा इज वेरिएबल यस, बट नंबर्स उसमें है एंड वी अट्रैक्ट दोज नंबर्स इन आवर लाइफ जो घटनाएं हमारी जिंदगी में हो चुकी है, होने वाली है या हो सकती है। Yes, so numbers play a very, very important role in our life, and decoding the language of numbers, understanding the language of numbers is numerology. Numerology is a very, very divine science. It is a part of occult science. Occult is a big umbrella. जितने भी तरह के हमारे ज्योतिष होते हैं ना, उसी को हम occult कहते हैं। न्यूमरोलॉजी के लिए लोगों के दिमाग में एक मिथ है। न्यूमरोलॉजी एक नया नया साइंस है जिसकी उपज लॉकडाउन में यानी कि कोविड के दौरान हुई एंड भारतवर्ष के आधी जनता न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई उस टाइम पे। नो, इट्स नॉट दैट। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष, इट इज एज एंशियंट एज ज्योतिष। ज्योतिष का आविष्कार किया था ऋषि पाराशरी ने। उसी का जो अंकों वाला पार्ट है दैट इज नोन एज अंक ज्योतिष। इट्स ओनली दैट कि वो ये जो पार्ट है, ये जो साइंस है उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था एंड कोविड गेव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दिस साइंस टू द नेक्स्ट लेवल। Numerology can give us very good predictions, best of predictions, and it is indeed a beautiful science to be understood. So, welcome everyone on this beautiful journey of learning numerology, of understanding numerology, and decoding the language of numbers. So, give me 1 second to share the screen and we will see more important facts. Yeah, it's unveiling numerology. Unveiling numerology, understanding numerology via numeroscience with Rashmi. Key to your success. Meet me, friends. I'm Rashmi S. Saraf. As you all know my name, I happen to be an astronumerologist, a consultant, and trainer in this beautiful science. But by education, I am a cost management accountant with a certificate of practice.
Now, what motivated me to step into this science of numbers? That I'll be sharing in the latter half of the session. But yes, friends, numbers were always my calling. When I was a CMA then, and now when I am an astronumerologist then. So yes, friends, number affect each and every one of us. I have a strong clientele of 2000 plus with students more than 500 with whom I shared my humble knowledge with. मार्केट में हमारे पास बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी आती है। कई बार होता है कि हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इतने सारे तरह के न्यूमरोलॉजी है जो कि बहुत ही फेमस है एंड जो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। जिस प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं वो हमें बताता है कि भाई हम तो इस मोडालिटी की न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं, हम पाइथागोरियन प्रैक्टिस करते हैं, हम लोशु प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई कहेगा हम वैदिक प्रैक्टिस करते हैं, कोई शैल्डियन बोलेगा तो कोई कुछ और। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा सही है। एक लेमैन या एक नेटिव जब अपना चार्ट एनालाइज करवाने किसी अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे एंड दे हैपन टू से कि भाई हम ये करते हैं, गो टू अनदर वन, दे विल से हम तो ये करते हैं। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है? लाइकवाइज वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस फॉर अ ब्रांड। हम एक शर्ट लेने के लिए गए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम कौन सी ब्रांड की शर्ट लें, वही वाली सिचुएशन हो जाती है हमारे पास में। तो उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट हमारे सामने है, हमने देखा उसका फैब्रिक कैसा है, कैसा वो बना हुआ है, स्टिचिंग कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी कैन सी। व्हाट अबाउट सर्विसेज? सर्विसेज में तो वी कांट चेक अपॉन दैट। So here's there I am going to share a small story with everyone जहाँ से the concept will be absolutely clear कि why numerology is of various modalities but why are we following specific modality of numerology. As you can all see on the screen, there were few blind men, कुछ अंधे लोगों को हाथी देखना था। सिंस वो ब्लाइंड है, वो आंख से तो देख नहीं सकते हैं, तो उनके जो मेंटोर थे उन्होंने उसको एक हाथी के पास वो ले गए और हाथी का हर एक पार्ट, एक एक पार्ट उन्होंने हर एक अंधे इंसान को पकड़ा दिया। किसी के हाथ में उसकी पूंछ आई, तो किसी के हाथ में उनका पैर आया, तो किसी ने पेट पकड़ लिया, किसी ने सूंड, तो किसी ने दांत। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में, हर पर्सन ने अलग अलग पार्ट वहां से पकड़ लिया एंड उनके हिसाब से वही हाथी था। So now my question is, were all of them wrong? क्या वो गलत थे? जिसने सूंड पकड़ी क्या वो गलत था कि वो हाथी का हाथी है, या जिसने पूंछ पकड़ी वो गलत था कि वो हाथी है? नहीं, वो हाथी को अलग अलग रूपों में देख रहे थे, जैसे कि हम प्रभु को देखते हैं। आपका रिलीजन चाहे कुछ भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, कुछ भी आपका रिलीजन हो सकता है। प्रभु को आप किसी भी नाम से पुकारते हो, बट अल्टीमेटली वी रीच टू दैट सिंगल डिवाइन फोर्स, दैट कॉस्मिक फोर्स के पास हम पहुंच जाते हैं। उसी तरह से ये जो न्यूमरोलॉजी की अलग अलग मोडालिटीज है, भले ही कोई भी किसी मोडालिटी को फॉलो करता हो, वैदिक न्यूमरोलॉजी फॉलो करे चाहे रोशु ग्रिड फॉलो करे, कंक्लूजन्स हमारे वो सिंगल ही आएंगे, सेम कंक्लूजन्स पे हम पहुंचेंगे। आप जो प्रेडिक्शंस न्यूमरोलॉजी से दोगे, वही सेम प्रेडिक्शंस आपके एस्ट्रोलॉजी से भी आएंगे, वही सेम प्रेडिक्शंस आपके टैरो से भी आएंगे। हमारे पास ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। अगर मैं टैरो कार्ड करवाता हूँ, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी करवाती हूँ, तो हाउ विल इट इंटेग्रेट विद न्यूमरोलॉजी? तो वही वाली बात है, जैसे कि ये सब लोग सही है अपने अपने तरीके से कि यस, हाथी के किसी भी पार्ट को उन्होंने पकड़ा, मगर वो हाथी ही था। जैसे आप प्रभु को किसी भी नाम से पुकारते हो, प्रभु एक जगह ही आप पहुंचते हो, वहीं पे एक जगह ही पे ही आपकी अरदास सुनी जाती है। उसी तरह से आप किसी मोडालिटी को फॉलो करो ऑकल्ट का, यू विल रीच टू द सेम कंक्लूजन प्रोवाइडेड you do it with clear and strong intentions. Yes, doubtful जो रहेगा, जिसके मन में संशय होगा, जो टेस्ट करने के लिए आता है कि हम टेस्ट करें ये काम करता है कि नहीं, उनके काम नहीं बनते। So having faith, strong and clear intentions is the base of any science, especially divine sciences. Yes. Why should anyone refer neuroscience with Rashmi with confidence, or why should anyone turn up to neuroscience with Rashmi? हमारे पास ऐसा क्या स्पेशलिटी जिसके लिए आप हमसे पढ़ना चाहेंगे या हमारे पास आना चाहेंगे फॉर एनी कंसल्टेशंस या और फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स? अंडर वन रूफ
I'm catering to many modalities of occult, starting from the three major modalities of numerology, like Vedic numerology, Losho grid, Shaljan numerology, and mobile numerology also. Apart from that, we also provide services of signature analysis via graphology. We also diagnose the psychological aspect of a person's brain with the help of drawing analysis. Nadi astrology and yes, of course, customized affirmations. जब हमें कोई स्पेसिफिक चीज मैनिफेस्ट करनी होती है, हम उसके लिए वो स्पेसिफिक काम करते हो ना। सपोज हमें बैंक जाना है, तो हमें पता होता है कि बैंक में हमारा सेविंग्स अकाउंट है, हमें सेविंग्स अकाउंट में हमें इतना परसेंट ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें उसके अंदर हमें इतना रुपया डालना है। हम एसआईपी करते तो हम पता होता है कि हमारा हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी मंथ हमको इतना रुपया डालना है, बिकॉज मेरा टारगेट ये है, वो एसआईपी से मुझे ये टारगेट तक पहुंचना है। उसी तरह से जब हम कस्टमाइज्ड एफर्मेशंस करते हैं अपनी कोई एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करने के लिए, स्पेसिफिक गोल को टारगेट करने के लिए विथ क्लियर इंटेंशंस, यस, हमारा वो टारगेट डेफिनेटली अकम्प्लिश होता है। And neuroscience with Rashmi also deals with Nadi astrology. That again happens to be a very accurate method of predictions in astrology. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मोबाइल है, उसके अंदर एक आदमी जा रहा है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो आप लोगों ने बहुत देखी, गूगल पे भी मिलती है, यूट्यूब पे भी मिलती है। जनरली उसमें क्या होता है, मोबाइल नंबर का टोटल आप कर लो, वो कितना पे आ रहा है, अच्छे नंबर पे आ रहा है कि नहीं, 5 पे आ रहा है कि नहीं, 6 पे आ रहा है कि नहीं, 1 पे आ रहा है कि नहीं। अगर इनमें से आ रहा है तो आपका मोबाइल नंबर अच्छा है, वरना आपका मोबाइल नंबर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। रियली, इज दैट द ओनली थिंग इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी? आपके मोबाइल में इतना कुछ चलता है, आपका बैंक से लेकर आपका मार्केट तक, बच्चे के स्कूल से लेकर आपका ऑफिस तक, शॉपिंग से लेकर आपके ऑनलाइन ग्रुप्स तक। तो फिर इस मोबाइल नंबर का टोटल इतना आसानी से आपने देख के आपने बता दिया कि वो नंबर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इज इट सो? नो, इट्स नॉट दैट। वी टीच यू मोबाइल न्यूमरोलॉजी इन अ वेरी डिफरेंट वे। मोबाइल नंबर में जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, नंबर 1 द कॉम्बिनेशंस, नंबर 2 द प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स, किसके बगल में कौन बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक is also very intelligent and Usha is also very intelligent. Both of them are sitting together, so they are creating good results in the class. Both are helping each other, they have a good bonding between them, and they are creating good results in the class also, and they are creating good results in their own report card also. But Abhishek and Rashmi are sitting together. Rashmi is a naughtiest child of the class despite being intelligent. Abhishek is also equally intelligent, but Abhishek happens to be slightly politer. अब रश्मि क्या कर रही है, वो अपना तो काम कर ले रही है फटाफट, अभिषेक थोड़ा स्लो है, तो वो अपना काम करके अभिषेक को कंटिन्यूस डिस्टर्ब कर रही है। रिजल्ट पे इफेक्ट आ गया उसके, नॉर्मल से उसके कम मार्क्स आए। सेम थिंग हैपेंस विद द प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स। जैसे दो लोगों का प्लेसमेंट उनको इफेक्ट करता है, उसी तरह नंबर्स का प्लेसमेंट भी उन लोगों को इफेक्ट करता है। एंड वो किसको इफेक्ट करेगा? जिस इंसान का वो नंबर होगा वो उसको इफेक्ट करेगा। So the placement also has to be dealt with great efficiency. We teach you in mobile numerology all these things. And there are many more things. अभी और बहुत सारी चीजें, जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सेशन करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। इट वाज जस्ट अ स्मॉल थिंग। एंड आप लोग राइट साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पे दो नंबर्स डांस कर रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, लेकिन अलग टाइप से बनाए हुए, बोथ आर डांसिंग। नंबर 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? आई एम टॉल एंड अनबेंडिंग। नंबर 2 के पास लिखा हुआ है आई नीड योर सपोर्ट। अंडरस्टैंड नंबर्स वाया देयर शेप। यस, नंबर्स की जो शेप होती है उनके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। एक नंबर वाला चाह के भी झुक नहीं पाएगा, वेरएस 2 वाला तो बैठा ही झुक के है, तो वो किसी की भी बात इजीली मान जाएगा, कोई भी उसको इजीली अपना काम करवा सकता है, उसको समझा बुझा के, बहला फुसला के। हम कहते हैं ना, ये तो बहुत भोला भाला सा, इसको थोड़ा सा मतलब करेंगे, समझाएंगे, ये समझ जाएगा और अपना काम करने के लिए राजी हो जाएगा। मूवीज में हम देखते हैं ना,
किसी को तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़ लेते हैं? बिकॉज वो इंसान इजी टारगेट होता है, वेयर कोई होता है बहुत टफ होता है, उसको तोड़ ही नहीं पाते लास्ट तक। नंबर 1। अब ये कौन है? 1 नंबर वाला कौन होगा, 2 नंबर वाला कौन होगा? क्यूरियस? यस, आई विल बी कमिंग टू इट। जैसा कि मैंने कहा था, हर नंबर कुछ कहता है, बिकॉज ये हमारे नंबर्स नहीं है, दीज आर आवर प्लैनेट्स, ये हमारे ग्रह है जो कि हमारी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देते हैं, नई तरीके से हमारी लाइफ को लीड करना सिखाते हैं। दे आर द प्लैनेट्स विच टेल अस आवर स्ट्रेंथ्स एंड ऑफ कोर्स आवर वीकनेसेस। जैसे मैंने पूछा था कि न्यूमरोलॉजी क्या है और वो हमें क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। यस, बट न्यूमरोलॉजी हमें क्यों करना चाहिए? उसके अलावा भी और क्या बेनिफिट्स हो सकता है? वी अंडरस्टैंड आवर लाइफ बेटर, यस ऑफ कोर्स, लेकिन व्हाई शुड यू टेक अप न्यूमरोलॉजी एज अ प्रोफेशन? Or why should you take up numerology as a second profession? Or even if you don't want to take up numerology as a profession, not an issue. But why will numerology help you monetarily? Because we make professionals better professionals. That is the USP of numeroscience with Rashmi. And investment in knowledge gives the best interest. हम सब investment करते हैं, चाहे हम होम मेकर हो, चाहे हम प्रोफेशनल हो, बिजनेस पर्सन हो, चाहे हम जॉब करते हो, फ्रीलांसर हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो। We all strive for a better life and उसका database है पैसा। Money is an energy which should be handled with care. मनी की एनर्जी अगर खराब होती है तब वो खराब रिजल्ट देना शुरू करती है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट हम सब करते हैं। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारा होता है नॉलेज। किसी भी चीज की अगर आपको नॉलेज नहीं है, चाहे आप गाड़ी लेने ही जा रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि वो गाड़ी आपके स्मॉल टाउन के लिए अच्छी नहीं है, वो खाली चौड़ी सड़कों के लिए अच्छी है, तो फिर आप वो गाड़ी ले लोगे एंड यू विल एंड अप इन मेस। आपने अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी वो गाड़ी आपके यूज की नहीं है। क्या कमी रह गई थी? रिसर्च नॉलेज की कमी रह गई थी। तो नॉलेज का इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इट हैपेंस टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टू यील्ड गुड रिजल्ट्स इन वंस लाइफ। और इसके अलावा ये हमें क्या देता है? हम नया स्किल सीखते हैं। कोविड ने हम लोगों को सिखा दिया, अगर चलेगा तो सिर्फ स्किल बेस्ड बिजनेस चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चलने वाला है। लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, वो आप घर बैठे दुनिया के किसी कोने से भी स्किल वाला काम कर सकते हो। तो एक ना एक स्किल वाला काम सबको आना चाहिए, तो ये एक आपका नया स्किल डेवलप करता है। आपका जो लेफ्ट साइड, जो क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन होता है, उसको भी डेवलप करता है नंबर साइंस। Yes, earning. Money happens to be the database of our life. Money is like Dettol, which can kill 99.99% germs of your life. Yes, और इसकी कोई एज बार नहीं है। अगर आप जॉब में रिटायर हो जाओगे, अगर आप बिजनेस करते हो, एक समय के बाद आप थक जाओगे, आप हैंड ओवर कर दोगे अपने आने वाली जनरेशन को, या आपने जो प्रोफेशनल्स ट्रेन किया उनको हैंड ओवर कर दोगे। यस, लोग कहेंगे आप बूढ़े हो गए, अब आप घर में बैठो। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसकी कोई एज बार नहीं है। आप बल्कि आप जितने ज्यादा बूढ़े हो जाओगे, आपका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सीजन्ड हो जाएगा। एंड पीपल विल से तो बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर है, ये तो बहुत सीनियर ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर है, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्ञान है। सो यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट उल्टा है कि क्यों आपको एज के बाद न्यूमरोलॉजी करने से आपको फायदा मिलता है। Not only we understand our own strengths and weaknesses, we understand the strengths and weaknesses of others also. So we have a better roadmap for our own life and for others as well. मदद कर सकते हो औरों की. And yes, we have convenient online classes. Thanks to COVID, it gave us a enhanced online culture so that we all can connect under Zoom. Yeah, this is our Vedic grid. लोशो ग्रिड बहुत ज्यादा कॉमन होती है, तो लोग उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। ये हमारी वैदिक ग्रिड है, एंड इसको यूज करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी इन द सेशन, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। बेनिफिट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी में जैसे आप लोगों ने बताया, बट स्टिल जस्ट समिंग अप ऑल द बेनिफिट्स, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड करियर, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। नेम स्पेलिंग, बिकॉज एक ऐसा वेरिएबल है हम जिसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो मैंने बताया, सिग्नेचर एनालिसिस, सिग्नेचर हैपन्स टू बी योर ग्राफोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। आप कैसा साइन करते हो उसके नेचर के बारे में भी कम टू अंडरस्टैंड।
कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, यस, कैसे लोगों को काम करना चाहिए, कौन डायरेक्टर्स है, प्रोपराइटर्स है, कैसे उनको काम करना चाहिए. वी अंडरस्टैंड अबाउट लकी नंबर्स इन एवरी फील्ड. फॉरेन सेटलमेंट, दैट इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. क्या मैं फॉरेन में पढ़ाई कर पाऊंगा, मुझे जॉब मिलेगी, मैं सेटल हो पाऊंगा, मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा, मुझे वापस तो नहीं आना पड़ेगा, या मेरा बेटा वापस आ तो जाएगा क्या, जो बच्चा पढ़ रहा है या वह सेटल हो गया. पेरेंट्स पूछते हैं क्वेश्चन. All the questions you'll be able to answer. It is a very famous combination and it is a very what to say, मतलब ये एक बहुत ही tricky combination है, the 7-8 combination वैदिक ग्रिड का. ये मैंने इसके बाद रिसर्च की थी, सबमिट की थी अपने रिसर्च इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजी फोरम में, and it was validated and acknowledged by them, which can cause these kind of problems in a person's life. Further in the course आप इसके बारे में पढ़ोगे, जिन्होंने भी एनरोल किया है फॉर द एडवांस कोर्सेज, आप लोग डेफिनेटली इसके बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगी कि ये जो कॉम्बिनेशन है एक पर्सन की लाइफ में, इनमें से क्या प्रॉब्लम दे सकता है या इनमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स देगा, और कब देगा और कैसे देगा. मिसकैरेज, अबॉर्शन, लॉस ऑफ ए पेरेंट और स्पाउस, डिलेड मैरिज या फिर शादी होना ही नहीं, डिलेड चाइल्ड बर्थ, बच्चे ही नहीं हुए, मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन ऑल्सो भी दे सकता है ये कॉम्बिनेशन. ये it was acknowledged by the International Limnology Forum and I was also awarded by them. Dr. J.C. Chaudhary, who happens to be the first Indian limnologist to be published in the Guinness Book of World Record. Yes. तो अब हम आते हैं हमारी आज की थोड़ी सी पढ़ाई की हम करें, हम समझे हमारी वैदिक ग्रिड को. जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका कॉस्मिक डीएनए. सबको मैंने कहा था नोटबुक लेके बैठिएगा, आप लोग सब नोटबुक पे अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लो. तो हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हैं. डेट ऑफ बर्थ से वी गेट 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स ऑफ आवर लाइफ. आप लोग सब लिख लो एंड लेट मी नो. या तो हमारे पास दो नंबर्स आते हैं इसमें. पहला नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं हमारा बेसिक नंबर. बेसिक नंबर क्या होता है? जिस दिन हम बॉर्न होते हैं, जिस महीने की जिस तारीख को हम अपना जन्मदिन मनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की डेट लें, आज है 1 अप्रैल 2024. जो बच्चा आज के दिन बॉर्न होगा उसका जन्मदिन हम मनाएंगे अप्रैल की 1 तारीख को. हर साल 1 अप्रैल को बच्चे का जन्मदिन हम मनाएंगे. तो जो ये 1 तारीख है, जो डे ऑफ बर्थ है, वो हो गया उसका बेसिक नंबर. बेसिक नंबर भी कहते हैं इसको, इसको मूलांक भी कहते हैं, इसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, लोशो न्यूमरोलॉजी. नाम इसके बहुत सारे, मगर इसका मीनिंग एक ही होता है. जैसे मैंने कहा ना, नाम बहुत सारे हो सकते हैं किसी के भी, मगर उसका मीनिंग बिल्कुल सेम रहता है सबका. तो आप लोगों ने सबने ना बेसिक नंबर निकाला. सेकंड नंबर जो आता है वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर. डेस्टिनी नंबर हैपेंस टू बी द सम टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स इन योर डेट ऑफ बर्थ. फॉर एग्जाम्पल अगर आज का ही अगर हमने डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है, तो इट वुड बी 1 + 4 प्लस 2024 को भी हम प्लस करेंगे. सो 1 + 4 + 2 + 0 + 2 + 4. तो कितना आया ये आपस से इसका वैल्यू आ गया 4. इस तरह से आप सभी कोई अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर निकाल लो. डेस्टिनी नंबर जो होता है उसको हम लोग डेस्टिनी नंबर तो बोलते ही हैं. जैसे वो मूलांक है तो उसको हम लोग बोलते हैं भाग्यांक, उसको बोलते हैं बेसिक, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनी. उसको हमने कहा ड्राइवर, तो इसको हमने कहा कंडक्टर. यस.
These two numbers are also known as the ruling numbers of our life. ये जो नंबर्स होते हैं हम वैदिक ग्रिड बनाना सीखेंगे कल की क्लास में, लेकिन ये जो दो नंबर्स होते हैं ये नंबर्स पे हमारी दुनिया टिकी हुई होती है, हमारा नेचर कैसा होगा, हमारी आगे की लाइफ कैसी होगी, हम कैसा क्या काम कर पाएंगे लाइफ में, किस तरह के हमारे चैलेंजेस हम फेस करेंगे लाइफ में, किस तरह का हमारा एजुकेशन होगा, किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ में। ये और जो नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में वो भी इम्पोर्टेंट है, मगर ये जो दो नंबर्स है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। दे डिसाइड द फेट ऑफ ए पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम देयर नेचर टू देयर लाइफ, एंटायर लाइफ। सबने अपना तो बेसिक एंड नेस्टेड नंबर निकाल लिया एवरीवन? किसने नहीं निकाला है? अगर किसी ने नहीं निकाला तो काइंडली लेट मी नो। ओके, इट सीम सबने निकाल लिया। अब किसके बेसिक डेस्टिनी नंबर में 1 आया ये उन लोग के लिए, इधर बेसिक में 1 आ रहा है या डेस्टिनी में 1 आ रहा है, दे आर द पीपल हु हैव अ रूलिंग नंबर 1 इन देयर चार्ट। ठीक है, उनके दो रूलिंग नंबर्स में से एक नंबर भी अगर 1 आता है या फिर दोनों नंबर्स ही 1 अगर आते हैं तो भी चलेगा, दोनों में से अगर एक भी 1 आता है तो भी ये उनके लिए है। हमारे पास 9 नंबर्स है, 9 नंबर्स का हमारा कैबिनेट है, 9 नंबर्स का हमारा प्लानिटरी कैबिनेट है। जैसे हमारा पार्लियामेंट्री कैबिनेट होता है, पार्लियामेंट होता है, वैसे ये हमारा प्लानिटरी कैबिनेट है। यस, एंड इसमें ये जो 9 नंबर्स है ये अपना काम करते हैं, इनकी सरकार चलती है यहाँ पे। और ये जो 9 नंबर्स नंबर्स नहीं है, ये हमारे 9 ग्रह है। 9 ग्रहों की पूजा हम करते हैं हर बार, सबके घरों में ही होती है मोटा मोटी। तो ये जो हमारे 9 ग्रह है, 9 ग्रहों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ऐसे तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें, हम एक एक प्लैनेट के बारे में एक एक दिन तक बोल सकते हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है। मगर आज के सेशन में वी विल ट्राई टू कंसाइज द इंफॉर्मेशन एंड ब्रीफ में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला नंबर आता है वो आता है नंबर 1। अब ऐसे तो गिनती 1 से लेकर करोड़ों तक जाती है, उसके आगे आगे भी जाती है, मगर न्यूमरोलॉजी में वी डील विद सिंगल नंबर्स। जहां भी कंपाउंड नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा 1 तारीख को पैदा हुआ या कोई बच्चा 28 तारीख को पैदा हुआ, 28 का सम टोटल आएगा 10, 1 + 0 फिर आएगा 1, तो उसका बेसिक नंबर हो गया 1। उस तरह से ही आप लोग को सबको कैलकुलेट करना है। जिसका भी रूलिंग नंबर्स में से आता है नंबर 1, एक नंबर क्या है, एक नंबर फर्स्ट नंबर ऑफ द नंबर प्लेन एंड इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सन, यानी कि सूर्य से। सूर्य देवता संसार में जो लाइट और लाइफ लेके आते। सूर्य अगर एक दिन नहीं उगे तो संसार में ना लाइट रहेगी ना लाइफ रहेगी। सन इज द गिवर ऑफ लाइट एंड लाइफ इन द वर्ल्ड। सो एक नंबर जो है सूर्य से रूल्ड है, इसको हम राजा भी बोलते हैं और रिप्रेजेंट करता है फादर को भी। अब कैसे रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन एक नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, सिंस वो राजा होते हैं तो उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है एंड दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज आल्सो। राजा कैसा होता है? राजा है तो उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज है, उसके पास बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज है, इसलिए वो राजा बना है। काफी कंपटीशन फेस करके वो राजा बना है। उसके बाद से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे और भी बहुत सारे लोग थे जो उस कैटेगरी में आना चाहते थे, उन सबको हरा के वो एक बंदा राजा बना है। राजा इज द चूजन लीडर बाय द पीपल। यस, सो नंबर 1 पीपल, they are chosen leaders, they have immense leadership qualities,
उसके साथ ही साथ दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। अमिताभ की एक मूवी थी ना, कभी खुशी कभी गम, उसमें वो कहता था कह दिया सो कह दिया। तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको अपनी बात पे पूरा भरोसा होता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल होना भी चाहिए। अथॉरिटेटिव लीडरशिप, अ ब्लेंड ऑफ लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस लीड्स टू अथॉरिटेटिवनेस। सूर्य को आप देखो, उसकी जो जगह है उस टाइम, उसका जो टाइम है उसी टाइम पे वो आएगा, उसकी जो जगह है वो वहीं पे रहेगा। आधा हाफ में वो ईस्ट में रहेगा। हम लोग बोलते हैं सन सेट्स इन द वेस्ट। हमारे एशियन कंट्रीज के हिसाब से सन सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन कहीं पे तो सूर्य उगा हुआ है वहां पे। वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं तो उगा हुआ है। तो उसका अपने रूटीन है, अपना एक टाइम है। तो ये लोग कैसे होंगे? रूटीन के बड़े पक्के होंगे एकदम, रूटीन से अपना काम करेंगे। सुबह इतना समय पे उठना है, उतना समय पे उठेंगे, रेस्पेक्टिव उनका तबीयत खराब है अच्छा है उससे मतलब नहीं। इस टाइम पे ऑफिस जाना है उसी टाइम पे जाएंगे, इस टाइम पे ये काम करना है उसी टाइम पे वो करेंगे। डिसिप्लिन्ड पीपल अंडर द सन। क्यों? क्योंकि वो राजा है। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है फादर। तो जो हमारे राजा होते हैं ना, वो बिल्कुल हमारे लिए हमारे फादर की तरह एक्ट करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, इनडायरेक्टली वो हमारे लिए इंडिया के राजा हो गए। एंड ही टेक्स केयर ऑफ द पब्लिक इन द सिमिलर वे, जैसे कोई पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है। ऐसे भी हमारे घर में जो हमारे फादर होते हैं, हमारे इंडियन सिस्टम में अभी भी हमारे फादर्स को ही घर का जो मुखिया कहा जाता है। तो फादर जो होते हैं ऐसे भी घर के वो प्राइम अर्निंग मेंबर होते हैं। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि फीमेल ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग एंड दे वर अर्निंग एट पार विद द मेल मेंबर्स, लेकिन फिर अभी भी घर में घर के जो मुखिया होते हैं वो फादर को ही माना जाता है। तो यस, नंबर वन पीपल, दे मे बी born on the first, they may be born on the 10th, may be born on the 19th or 28th of any month. So people born on the 1st, 10th, 19th and 28th of any month, और डेस्टिनी नंबर वन। डेस्टिनी नंबर अब कंपाउंड नंबर पे आएगा, आप उसको ब्रेक करके सिंगल नंबर पे ले आओ, उसमें अगर वन आ रहा है तो यस, दे हैव अ रूलिंग नंबर वन। So they are ruled by the planet sun and they have kingly attributes. उनके हिसाब से उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, काम वही होना चाहिए, घर में उनकी ही चलेगी। घर में अगर पिताजी की जगह माता जी का डेट ऑफ बर्थ में वन ऐसे रूलिंग नंबर्स में आता है, पापा अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलेगी माँ की ही। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के चार्ट में नंबर नहीं है, मतलब रूलिंग नंबर्स में वन नहीं है, बच्चा कोई जो बॉर्न हुआ वो एक नंबर वाला बॉर्न हो गया, छोटी उम्र से उसकी चलेगी, मतलब उसके बॉर्न होने के संग संग उसके हिसाब से घर में एडजस्टमेंट्स होने लग जाएंगे। तो आप लोग के कॉन्टैक्ट स्फेयर में जिसकी जिसकी भी चार्ट डेट ऑफ बर्थ आप लोग को ध्यान में है, प्लीज चेक एंड यू विल कम अक्रॉस अ होस्ट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। बहुत सारे रहस्यमय चीजें आपको आज देखने के लिए मिलेगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये लोग बिल्कुल अपने हिसाब से काम करने वाले लोगों में से है। इनका जो स्लोगन बड़ा फेमस है, हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये लोग अपने हिसाब से सिस्टम को रीफ्रेम कर देंगे, अपने हिसाब से चीजों को नया बना देंगे, किंतु लाइन इनके हिसाब से ही चलेगी, इनके हिसाब से ही शुरू होगी। पीछे रहना इनकी आदत नहीं है। एक नंबर वाला कैसा खड़ा है? बिल्कुल सीधा खड़ा है एकदम। किसी सिचुएशन में लोग झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। कोई स्टिक जो सीधी, डंडा जो सीधा है उसको हम झुकाने की चेष्टा करते तो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे अरे भाई ये तो टूट जाएगा ना, अगर आप इसको मोड़ोगे तो टूट जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं है, टूट जाएगा। तो यस, नंबर एक वाले बहुत कम फ्लेक्सिबल मिलेंगे, अनलेस एंड अनटिल उनकी चार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी वाले और नंबर्स है, तभी वो फ्लेक्सिबल मिलेंगे आपको, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में तो और भी नंबर्स है ना। तो चार्ट में सारे नंबर अफेक्ट करते हैं, लेकिन रूलिंग नंबर्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। नेगेटिव ट्रेड्स इनका क्या होगा? सूर्य कैसा होता है? बहुत गर्म। सूर्य के आसपास भी कोई जा नहीं सकता है, कोई जाएगा तो भस्म हो जाएगा वहीं का वहीं। एक हनुमान जी थे जिन्होंने सूर्य को ग्रस लिया था, अदरवाइज सूर्य के आसपास कोई जा नहीं सकता है। इनका स्वभाव बड़ा गर्म होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होंगे।
एंग्री, अथॉरिटेटिव, फुल ऑफ एंगर, बात जहां पे पूरी नहीं हुई, भयंकर गुस्सा, डरेंगे सबको इनसे घर में, इस तरह का इनका स्वभाव होगा। यस, सूर्य के बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो कि एडवांस कोर्स वाले स्टूडेंट्स को मैं वापस से ग्रेजुअली जैसे जैसे उनका कोर्स बढ़ेगा दे विल बी टॉट। अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। नाउ विल मूव टू द सेकंड नंबर, दैट इज नंबर 2। एक के बारे में हमने पढ़ा, अब हम आएंगे नंबर 2 के ऊपर में। एक के बाद 2 आता है। एक नंबर अगर सूर्य है तो 2 नंबर चंद्रमा है। एक नंबर अगर राजा है तो 2 नंबर रानी है। एक नंबर अगर फादर है, पिताजी है, तो 2 नंबर माँ है, माता जी है। तो इनके अंदर एट्रीब्यूट्स अब आप लोग समझ गए होंगे, इनके एट्रीब्यूट्स से बिल्कुल चेंज हो गए। अब सूर्य जब आसमान से चला जाता है तब मून आ जाता है स्काई में। मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, सन की एनर्जी, सन की लाइट लेके मून जगमगाता हुआ हमें दिखाई देता है। अब सूर्य और चंद्रमा 2 डिफरेंट स्टार्स है जिनको हम आसमान में देख सकते हैं, 2 डिफरेंट प्लैनेट्स है जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। यस, लेकिन दोनों के स्वभाव में, दोनों के एट्रीब्यूट्स में जमीन आसमान का अंतर है। सूर्य की तेज रोशनी आंखों को चुंधिया देती है। सूर्य की गर्मी हमें कई बार मतलब बीमार भी कर सकती है। लोगों का स्वभाव, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत हॉट माइंडेड हो सकते हैं वो लोग। लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, झुकेंगे नहीं। मून बिल्कुल उसका उल्टा, बिल्कुल उसका उल्टा। चंद्रमा becomes the symbol of love, romance, relationships, calmness, family। ये लोग बड़े ही स्वीट से, केयरिंग से होंगे। क्यों इतने केयरिंग और स्वीट से होते हैं ये लोग? बिकॉज चंद्रमा एक सिंबल है ब्यूटी का। हमें किसी को कॉम्प्लीमेंट देना होता है तो हम लोग बोलते हैं चांद सा सुंदर चेहरा, भगवान करे तुम्हें चांद सा बेटा हो, तुम्हारे घर में चांद सी बहू आए। मतलब चंद्रमा बिकम्स द सिंबल ऑफ ब्यूटी फॉर एवरीवन। उसके अलावा हिंदी बॉलीवुड मूवीज जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है एग्जाम्पल्स का, सबसे बड़ा सोर्स है लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स का। जब भी रोमांस की बात होती है चांदनी रात का जिक्र जरूर आता है। यहाँ तक कि जोक्स में भी चांदनी रात का होता है। चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, हमने सुना बचपन में काफी ये वाला। सो चांदनी रात अगेन हैपेंस टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल शीतल, बिल्कुल बहुत अच्छी। पूर्णिमा का जो फुल मून हम देखते हैं, इट लुक्स सो डिवाइन, कितना अच्छा लगता है हमें। मेडिटेशन करते हैं, कामनेस के लिए मेडिटेशन करते हैं, ऑल रिलेटेड टू मून। सो जैसे हमने देखा वो दिमाग गर्म है तो यहाँ दिमाग बिल्कुल ठंडा है। वहां पे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पे क्या है, माँ डिपेंडेंट हो गई है। पीपल रूल बाय नंबर 2 आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डिसीजंस। वैलिडेट करके काम करेंगे, पूछ के काम करेंगे। उनको आइडिया है घर में आज यही सब्जी और बनानी मुझे यही सब्जी पड़ेगी, फिर भी वो लोग, जब 1 नंबर वाली माँ होगी तो क्या करेगी? बच्चा बोलेगा ना मम्मी आज आप ये बनाइए। घर में सुनो यही सब्जी है और यही सब्जी मैं बनाने वाली हूँ, मेरे पास इतना एनर्जी और टाइम नहीं है, नीचे से जाके मैं और सब्जी लेके आओ, तुम्हारे हिसाब से बनाओ। 1 वाली माँ बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट, क्लियर कट बात बोलेगी। 2 वाली माँ, बच्चा बोलेगा तो माँ बोलेगी अच्छा ये वाली खाओगे, अच्छा घर में तो सब्जी है नहीं, अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, पापा को फोन करती हूँ, पापा आने के समय ले आएंगे। केयरिंग, किसको क्या खाना है, किसको क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से दे विल ट्राई टू डू। फिर पूछ के काम करेंगे। बच्चे को जाना पिकनिक पे, मम्मी मैं जाऊं? नहीं, पापा से थोड़ा पूछ के बताती हूँ कि तुमको जाना है। वैलिडेशन लेके पूछ के काम करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट है, उनकी अपनी रोशनी नहीं है। रोशनी कहाँ से आई? सूर्य से आई। तो जो उनकी लाइफ का सूर्य है, जो उनके अथॉरिटेटिव पर्सन है, उसको पूछ के काम करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जेंट्स भी अगर 2 नंबर से रूल्ड है तो वो अपने वाइफ को या माँ को या घर में जो भी है या उनकी लाइफ में जो भी है अथॉरिटेटिव या उसको जो जिसको भी वो मानते हैं, उससे एक बार पूछ के कंफर्मेशन लेके फिर दे विल ट्राई टू वर्क इन दैट वे।
एंड ऑल्सो दे आर वेरी इमोशनल पीपल, बिकॉज हमारे सारे इमोशंस मतलब हमारे जुड़े हुए रहते हैं हमारे दिमाग से। वेरी वेरी इमोशनल सेंसिटिव पीपल। दो आंसू मानो आंखों में यहीं पे रखे हुए हैं एकदम, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया आंसू बह निकले बाहर। वेरी इमोशनल पीपल। इंसाइटफुल, किसी के मन में क्या चल रहा है इन लोगों को बड़ा जल्दी समझ में आता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि औरों के हिसाब से हम काम करें। इंट्यूटिव ऑल्सो, इनके इंट्यूशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज दिमाग ठंडा है ना। जहां दिमाग ठंडा होगा वहां इंट्यूशंस डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाते हैं। दे कैन कनेक्ट देमसेल्फ टू द डिवाइन फोर्स वेरी इजीली। नाउ हु आर द पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 2? People born on the 2nd, 11th, 20th, and 29th of any month, they are ruled by this beautiful planet Moon, that is number 2, or who have destiny number 2 in their chart. कंपाउंड नंबर चाहे कुछ भी हो, एट्रीब्यूट्स ये उनके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। एक के लिए हमने जैसे बोला, एक झुकेगा नहीं किसी भी हालत में, झुकेगा तो टूट जाएगा, उसका जो अपना एसेंस है वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो बहुत दिल दुखा के वो झुकेगा, मतलब बहुत मजबूरी में ही झुकेगा, लगेगा कि अब इसके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। एक नंबर वाला लास्ट तक ट्राई करेगा अपनी बात मनवाने का, जैसे फौजी होता है ना, बोलता है कि खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा, वैसे एक नंबर वाला लास्ट तक ट्राई करेगा अपनी बात मनवाने का। जब देखिएगा अब नहीं हो रहा है, तब वो बहुत अनमने रूप में बहुत मन मार के वो झुकेगा। वेरएज दो नंबर वाला बहुत आसानी से झुक जाएगा, रादर वो झुका हुआ ही रहता है, इसलिए वो सबके संग इतना इजीली मिक्सअप हो जाता है। औरों की बात मान लेता है बहुत इजीली, औरों के हिसाब से काम करता है, औरों को पूछ के काम करता है। माँ बिल्कुल वैसी ही होती है, घर में सबको लेके चलती है, सबको पूछ के खाना बनाती है, सबके हिसाब से ऑर्गेनाइज करती है, कुछ भी पार्टी वगैरह कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट। वी ऑल कैन रिलेट टू इट वेरी इजीली। सो दैट वाज अबाउट नंबर 2। नंबर 2 की और बहुत सारी चीजें हैं। अब नंबर 2 में प्रॉब्लम्स क्या होती है? नंबर 2 वाले लोग सेंसिटिव होने के साथ साथ बहुत मूडी भी होते हैं। मूडी क्यों होते हैं? चंद्रमा 15 डेज बढ़ता है और 15 डेज घटता है, ठीक है? तो इन लोगों के मूड स्विंग से वैसे ही होते हैं, पल में माशा पल में तोला। कब इनका मूड खराब हो जाएगा और कब इनका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा कोई नहीं बता सकता है। ये लोग खुद भी नहीं जानते कब इनका मूड खराब होगा। सेकंड, कंफ्यूजन। सबका वैलिडेशन ले लेके इनका दिमाग इतना सैचुरेट हो जाता है कि इनके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, हमेशा डबल माइंडेड रहेंगे। मैं ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, हमेशा इनके दिमाग में वही चीजें चलेगी। डबल माइंडेड रहेंगे बिल्कुल। सेंसिटिव है तो कहीं ना कहीं पे बहुत रिएक्टिव भी हो जाते हैं ये लोग। छोटी छोटी बातों अन पे ले लेना, रोना धोना मचाना। ज्यादा अगर प्रॉब्लम हुई तो मून अगर ज्यादा खराब है, मून ज्यादा खराब कैसे होता है? यस, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन द कोर्स। मून अगर ज्यादा खराब है तो डिप्रेसिव हो जाना, डिप्रेशन में कुछ और करने की कोशिश करना, सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाना, इस तरह की चीजें भी इनके अंदर देखने के लिए मिलती है। यस, सो दैट वाज ऑल अबाउट नंबर 2। नंबर 3 करके विल एंड विद द सेशन। सो वी बिकॉज वी ऑलरेडी टाइम हमारा ओवर हो चुका है, नंबर 3 हम कर लेते हैं। तो हमने देखा 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी। राजा और रानी जो राज्य में है, अब उनके राज्य को संभालने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है। सबको जरूरत होती है गुरु की, तो राजा और रानी को भी जरूरत है गुरु की। तो यस, उनके पास है उनके कुल गुरु आचार्य जो है देव गुरु बृहस्पति, नंबर 3, जिनको प्लैनेटरी कैबिनेट में हम जुपिटर भी बोलते हैं। अब अब ये लोग कैसे होते हैं? अब ये गुरु है, देव गुरु बृहस्पति। अब ये गुरु है, गुरु मतलब नॉलेज, उनके पास बहुत ज्ञान है, तभी तो वो और सबको ज्ञान दे सकते हैं ना, तभी तो वो सलाह मशवरा अच्छा दे सकते हैं। तो इनके पास बहुत भर भर के नॉलेज है।
फिर वो देव गुरु बृहस्पति है तो बहुत स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी है, उनके पास डिवाइन पावर्स भी होते हैं। यस, नॉलेज में ऐसा है कि उन्होंने जैसे ऐसा नहीं कि उन्होंने एक कोर्स कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे कोई है जो 3 नंबर वाला है। अच्छा, यू हैव नंबर 3, नंबर 3 इज बेसिक और डेस्टिनी। राधिका, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। Destiny. Okay, destiny is 3. Destiny And 3. basic is 1. Basic is 1. Oh, great. You have a very fine combination of numbers. God bless you. नंबर 3 वाले जो लोग होंगे उनको नॉलेज की हमेशा एक क्रेविंग रहेगी। जैसे होता है ना, क्रेविंग होता है, किसी को आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है, किसी को कोई चीज का एडिक्शन होता है, चाय पीने का एडिक्शन है, कॉफी का एडिक्शन है, तो कॉफी की क्रेविंग होती है उनको। दिन में चाहे 4-5 कप भी पिला दो तो उनको कम पड़ेगा। नंबर 3 वाले लोगों को क्रेविंग होती है नॉलेज की क्रेविंग, नॉलेज इन एनी फॉर्म। कहीं पर भी वो कुछ देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग तो उनको लगेगा कि यस, नहीं हमको तो ये चीज सीखनी है। दे वुड ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एंड एनीथिंग। इनको काम भी बहुत तरह के आएंगे, बहुत तरह के काम इनको आते हैं, वो बहुत तरह के काम करना भी चाहते हैं बहुत ज्यादा। नॉलेज का भंडार जैसे हम कह सकते हैं। एंड देयर आल्सो द पीपल हु आल्सो वांट टू शेयर, देना भी जानते हैं ये लोग। गुरु का तो काम ही होता है कि शिक्षा देना सबको, तो उनकी शिक्षा किसी एक जन को लिमिटेड नहीं रहती है ना, वो औरों को भी देना चाहते हैं, तो उस तरह का इनका स्वभाव होता है। गुरु की एक और खासियत होती है कि वो बड़े क्रिएटिव होते हैं। अब क्लास में टीचर को एक स्ट्रेंथ ऑफ 40 की क्लास को एबीसीडी पढ़ाना है। अब टीचर हर दिन एबीसीडी एक ही तरीके से पढ़ाएगा, बच्चे लोग क्या सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, बोलेंगे तो रोज एक ही तरह का राग अलापती है, हम लोग को मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। टीचर फिर क्या करती है, नए नए तरीके निकालती पढ़ाने के, स्टोरीज बना के सुनाएगी, गार्डन में लेके जाएगी, पिकनिक पे लेके जाएगी, क्लास में कुछ नए नए मतलब खेलने के इक्विपमेंट्स या टूल्स लेके आएंगे। मतलब शी इज वेरी वेरी क्रिएटिव, ही और शी इज वेरी वेरी क्रिएटिव। सो people who are ruled by number 3 are a blend of knowledge and creativeness. Intelligent तो वो है ही definitely, but they also know how to integrate creativity with knowledge. They are also multitaskers. एक साथ में 2 से 3 काम करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर में होती है। कुछ लोगों को हम देखते हैं ना, जो सपोज कंपनी के सीईओ है, उनके ऊपर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट उन लोग के पास एक ट्रिक भी होती है कि कैसे उनको एक साथ में बहुत सारे काम करने। दे नो दैट वेरी वेल। सो यहाँ जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये स्कैटर्ड एनर्जी, इसीलिए उनकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, बिकॉज उनको बहुत सारे काम एक बार में करने के लिए होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा होती है। कौन होते हैं जो लोग जो नंबर 3 के से रूल जो होते हैं? बेसिक नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 3। बेसिक में बॉर्न ऑन द 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ। और डेस्टिनी नंबर 3 कंपाउंड नंबर चाहे कुछ भी हो। They are the people who are ruled by the planet Jupiter और the कुल गुरु और आचार्य। जुपिटर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जुपिटर happens to be the biggest planet of the number system and of the solar system also. बड़ा प्लैनेट है तो सोच भी बड़ी होती है, छोटा काम करना नहीं चाहेंगे लोग। कोई बच्चा है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बच्चा है जो स्टार्टअप करना चाहता है, सपोज फॉर एग्जांपल उसको कपड़े की लाइन में स्टार्टअप करना है, तो पापा ने कहा कि चलो तुमको एक दुकान करवा देता हूँ, एक शॉप करवा देता हूँ, तो मार्केट में तुम वहां से अपना कपड़े का काम कर सकते हो। वो बोलेगा नहीं, मुझे तो मॉल खोलना है। छोटा काम में सेटल नहीं होंगे, इनके ख्वाब बड़े होते हैं, बातें बड़ी होती है एंड इनके एस्पिरेशंस भी बड़े होते हैं। यस, तो दैट वाज अबाउट नंबर 3। हम लोग आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, सो दैट आई कैन गिव मोर टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। यस,
अच्छा, सबके वीडियोस ऑफ हो गए हैं, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन, आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं एंड किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बिल्कुल पूछ भी सकते हैं। Radhika cleared her questions, I believe. Radhika, if you still have any questions, you are free to ask. Ritu, No, no, so Ranjana. far everything is very, Okay, very clear. thank you, thank you. Okay, Ritu, Jaya, Ranjana, or Indio, any questions from anyone? Okay, so I think we don't have any such questions. Jaya, you have any questions? No, you don't have any questions. Great. तो अभी तक से राधिका ने कंफर्म किया कि 1 and 3 का उनका बेसिक डेस्टिनी है. सो एनीवन एल्स जिसका कुछ मैच कर रहा, आपकी फैमिली में किसी का मैच कर रहा हो, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है? रितु हैज रेज्ड हर हैंड. यस रितु, यू वांट टू से समथिंग? आप अनम्यूट करिए अपने आप को, कैमरा ऑन करिए और बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं. आपने हैंड रेज किया है. मैम जिसका मतलब डेस्टिनी भी 1 हो और बर्थ डेट भी 1 हो, मतलब 21, तो हाँ. उसका क्या होगा? मतलब हाउ इज दैट पर्सन, मतलब जिसका दोनों ही 1 हो. दोनों ही अगर 1 होगा तो कोई नंबर भी- प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें. तो वो जैसे वो इंसान के जो जो मैंने 1 की क्वालिटीज बताए, वो सेम क्वालिटीज होंगे उनके भी. अच्छा, और जिसका मतलब नंबर बर्थ डेट 1 हो और टोटल में 2, और तब फिर वो सन एंड मून बोथ. हाँ, दोनों की क्वालिटीज आ जाएंगे उसमें. ओके फाइन, थैंक यू. थैंक यू. बचे हुए नंबर्स हम कल की क्लास में कवर करेंगे फ्रॉम 4 to 9. 4, 5, 6, 7, 8 and 9 हम कल की क्लास में कवर करेंगे. So till then, thank you everyone so much for joining. Jaya, you have a question? Yeah, please let me know. Unmute yourself, Jaya. मैं अनम्यूट किया है. हाँ अभी हुआ है. हाँ जी, नहीं, बोलो. मेरी डॉटर का जैसे 3rd नंबर है तो वो उसके ग्रिड में सिर्फ आता है 3, 2 और 2, मतलब लाइक 2000 बॉर्न है एंड फेब बॉर्न है, तो 3rd Feb 2000, तो उसके पूरे के पूरे ग्रिड में सिर्फ 3 ही नंबर है. नहीं नहीं, तो उसका डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करो. 3 + 2 इट कम्स टू 5 + 2 7. तो 3 and 7 का कॉम्बिनेशन हो गई ना. बेसिक इज 3, अच्छा. डेस्टिनी इज 7. तो उसकी चार्ट में ओके. 3, 2 and 7 आएगा. अच्छा. हाँ. ओके. और उसके वही. अलावा जब हम लोग दशा सिस्टम जो चलता है, तो किस समय पे कौन सी दशाएं चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके हिसाब से नंबर्स उसके चार्ट में प्लेस हो जाएंगे. तो नंबर्स अगर ओके. कम आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी चार्ट कोई भी तरह से वीक है या उसमें कुछ है ही नहीं देखने के लिए. ऐसे कुछ नहीं है. चार्ट में भले ही 3 ही नंबर्स हो, लेकिन वो चार्ट अपना रिजल्ट पूरा देता है. उसमें ओके. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अभी जैसे आपने 2 नंबर के लिए बोला ना, तो वो मेरे हाँ. बेटे का है. ही इज ओके. लाइक बोर्न ऑन 11th April 1996, तो उसके ओके. साथ में काफी कुछ मैच हो रहा है. हाँ, वही ये मैंने होगा. देखा कि मैच होता बहुत है, मैच मूवी तो होते बिल्कुल हैं, होता है. बहुत, ये 100% मतलब मैच लाइक होता है. बहुत मैच हो रहा था. हाँ. वही ये काम भी 100% है मैच जैसे. होता है. न्यूमरोलॉजी है ही इतना इंटरेस्टिंग साइंस, क्योंकि हम लोग भी अभी तक से, मतलब जैसे एवरी डे हम अपडेटिंग मैसेज, जब भी मैं किसी का कंसल्टेशन करती हूँ, कोई ट्रेनिंग सेशन देती हूँ, तो भी वी आर अपडेटिंग आवरसेल्व्स एवरी डे, बिकॉज हर इंसान कुछ नया चीज लेके आता है. उसकी चार्ट में भले वो डेट ऑफ बर्थ, सेम डेट ऑफ बर्थ किसी और का भी रहा हो, लेकिन फिर भी वो इंसान अलग होता है. बिकॉज इट्स अ हाँ. कॉस्मिक डीएनए. जैसे एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए 2 बच्चों का भी डीएनए अलग होता है, वैसे ट्विंस का भी डीएनए अलग होता है. तो उन लोग का कॉस्मिक डीएनए भी अलग है. डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स और भी होते हैं जहां से हम ट्विंस को सेपरेट कर सकते हैं. अग्री. हाँ. लेकिन काफी इंटरेस्टिंग साइंस है ये. या थैंक यू सो मच. एंड हाँ, बहुत हेल्पफुल भी है. लाइक या वेरी काफी हेल्पफुल. कुछ ऐसे, हाँ, लगता है कि लाइफ में अपने इस न्यूमरोलॉजी के थ्रू काफी कुछ ठीक कर सकते हैं, जो कि अपने को पहले नॉलेज नहीं था, बट अब अवेयरनेस आ गई है, तो लगता है कि इसका बेनिफिट्स लेना चाहिए. वी बिल्कुल शुड बिल्कुल. गो फॉर इट. 100%. 100%. थैंक यू. Thank you so much. So thank you so much everyone for joining. We'll meet again tomorrow at the same time, 6 o'clock. Sorry, tomorrow, no, not tomorrow. We'll meet on Wednesday.
Wednesday 6 o'clock, meet on Wednesday 6 o'clock. Till then everyone keep practicing. आपके पास जितनी भी chances आप लगा लो, उसमें ये 3 numbers जो मैंने कराया अप्लाई करके देख सकते हो. If you come across anything special, please let me know. ठीक है? Thank you so much. राधे राधे, आत्मा नमस्ते.